Hello students, I am Bhavna Sahani from Futuristic Academy. As your boards are really very near, they are approaching within 2 months and I know आप लोग बहुत nervous हो गए कहाँ से पढ़ना है कैसे पढ़ना है कुछ important questions मिल जाए तो so don't worry, I'm here to help you out. I'll be uploading all the important questions of economics and today we'll be discussing the important questions of chapter 1 of macroeconomics, that is introduction. And I hope these videos will going to help you for your study and you're going to score well if you'll go through all the questions I am discussing here. And if you'll be having any kind of queries, you can comment in the comment section below, or if you want any classes on any chapter, or if you want to do crash course, so then further details are given below in the detail box. So all the best in advance and I hope you're going to do well in your boards. So let's start with the first chapter, macroeconomics ka. We are doing circular flow of income, right? So first I'll be starting with 1 mark questions. Okay, so let's start. So here my first question is define stock variable. Okay, before doing this stock variable, I'll be teaching you the meaning of stock. This you have already done in supply in 11th class, ठीक है, but I'm still reminding you कि stock वो quantity होती है जो हम एक particular point of time पे measure करते हैं. मतलब एक particular point of time पे हमारे पास जितना भी stock पड़ा है, मतलब जितनी भी क्वांटिटी किसी चीज की पड़ी है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसे हम स्टॉक कहते हैं, राइट? सो स्टॉक वेरिएबल इज आर डिफाइंड एज एनी क्वांटिटी मेजर्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. मतलब किसी भी कमोडिटी की एक क्वांटिटी, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जब मेजर करी जाती है हम उसे स्टॉक वेरिएबल बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई कैन से दैट आई एम हैविंग 10 चॉकलेट्स right now at 11 o'clock I am having 10 chocolates. तो मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करी कि आज 11 बजे मेरे पास इतनी चॉकलेट्स पड़ी हैं, ठीक है. या फिर आई कैन से दैट टुडे मीन्स द स्पेसिफिक डे आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे, ठीक है. तो आज के दिन मेरे पास ये 10 चॉकलेट पड़ी हैं, तो ये मेरा स्टॉक हो गया, ठीक है. सो लेट्स रीड द एग्जाम्पल गिवन इन द आंसर. नंबर ऑफ मशीन्स इन अ प्लांट, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट में कितनी मशीन्स पड़ी है मेरे प्लांट में. आज मेरे एंटरप्राइजेज में कितनी मशीन है, दैट इज स्टॉक वेरिएबल. आज की डेट में मेरे पास कितना अमाउंट पड़ा बैंक में, दैट इज स्टॉक वेरिएबल. मैं इसमें मंथली या ईयरली या क्वार्टरली की बात नहीं कर रही. आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मे बी 3 o'clock, मे बी 5 o'clock, और मे बी टुडे, और मे बी yesterday, ठीक है. आई एम नॉट saying a month or year, ठीक है. So I hope you understand this. Let me read it again. Stock variables are defined as any quantity measured at a particular point of time. Example, number of machines in a plant or amount in the bank account on a specific date, etc. Okay, so my next question is define flow variable. Okay, so the similarity between stock variable and flow variable is that you measure a quantity of something, ठीक है. You measure a quantity of a particular commodity or you measure something इन क्वांटिटी. मतलब हम इसमें सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में क्वांटिटी मेजर हो रही है, और दोनों के बीच का डिफरेंस ये है कि जो स्टॉक है वो हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, ठीक है, और जो फ्लो है वो हम पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं. से पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम से इज 1 month, ठीक है, ईयरली, क्वार्टरली, 10 days, ठीक है. जो भी हम इन दिनों पे मेजर करते हैं दैट इज फ्लो वेरिएबल, राइट. सो फ्लो वेरिएबल आर डिफाइंड एज एनी क्वांटिटी मेजर्ड पर यूनिट, ठीक है. इसमें पर यूनिट का हिसाब नहीं होता, इसमें पर यूनिट होता है एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज फ्लो वेरिएबल. एग्जाम्पल, इनकम और एक्सपेंडिचर ओवर अ टाइम पीरियड ऑफ 1 month और 1 year. मतलब पूरे 1 month या पूरे 1 साल का इनकम या एक्सपेंडिचर निकाला हुआ है, दैट इज फ्लो वेरिएबल, right? So let's discuss the third question. Define depreciation. Depreciation क्या है? It is the loss of value of fixed assets in use
on an account of normal wear and tear. Guys, make sure that the words I'm underlining, that words should be in your mind, as these are the key words of an economics. अगर आप ये key words नहीं use करोगे तो आपके marks कट जाते हैं. So please make sure the word I'm underlining, I am circling the word, that those words are really important for you, right? So what is depreciation? It is the loss of value of fixed asset in use on an account of normal wear and tear, normal rate of accidental damage, or expected or foreseen obsolescence. ठीक है? So यहाँ पे कोई भी fixed asset से machinery, if I am using a machine डेली, तो वो मेरा नॉर्मल वियर एंड टीयर हुआ, और इस नॉर्मल वियर एंड टीयर की वजह से जितना भी वैल्यू मेरी गिर रही है, जितने भी वैल्यू में मेरा लॉस हो रहा है, ठीक है, वो डेप्रिसिएशन होता है. ठीक है, इतना ये चीज याद रखना, डेप्रिसिएशन सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स में होते हैं, राइट? सेकेंड थिंग, अगर मेरे किसी भी एक्सीडेंटल डैमेजेस होता है मशीन का, ठीक है, तो भी वैल्यू गिरेगी, तो वो लॉस ऑफ वैल्यू भी फिक्स्ड एसेट डेप्रिसिएशन में आएगी. ठीक है, या फिर एक्सपेक्टेड और फोरसीन ऑब्सोलिसीन, जैसे मेरी मशीन खराब होती है, मुझे आने वाले टाइम पे खराब हो जाती है, ठीक है, दैट इज एक्सपेक्टेड फॉर ऑब्सोलीन, या आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो जाती है जिसकी वजह से मैं उसे यूज नहीं कर पा रही, और जिसकी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होने की वजह से जो वैल्यू गिरी है, जो लॉस आया है, दैट इज डेप्रिसिएशन. एंड डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. ठीक है, ये डेप्रिसिएशन की अनदर टर्म है. मेक श्योर कि अनदर टर्म आपको याद हो, क्योंकि ये चैप्टर 4 में बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस टर्म डेप्रिसिएशन की जगह, अगर आपको याद हो, चैप्टर 4 में सिर्फ न्यूमेरिकल्स हैं, एंड उसके हिसाब से कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज डेप्रिसिएशन. आपको डायरेक्ट डेप्रिसिएशन नहीं गिवन हो सकता पेपर में, आपको कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी दिया जा सकता है. सो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज डेप्रिसिएशन. And one more thing, that this question is from chapter 2, which I'll be uploading in my next video. My next video will be related to the chapter 2. ठीक है, सो इसका एक क्वेश्चन इस नोट्स में डाले हुए थे, सो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया. ये आई विल बी टीचिंग दिस टर्म इन द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो, right? So these were the first 1 marker question which are important for the board point of view. ठीक है, नेक्स्ट लेट्स कम टू 3 marker question. 3 marker question में सबसे important question है कि explain the circular flow of income. This is the most important question for the board point of व्यू. ठीक है, एंड इसका डायग्राम तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डायग्राम तो आपने करना ही करना है. ठीक है, सो लेट्स सी फर्स्ट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक्सप्लेन करना है. तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है, सबसे पहले हम ये बताएंगे. ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू अनएंडिंग फ्लो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमिक. मतलब जो सबसे पहले क्या हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, ठीक है, उसके बाद ये हो गई गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन, फिर आती है इनकम, और फिर आता है एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो जो इसका कंटिन्यूस फ्लो है, इन तीनों चीज़ों का जो कंटिन्यूस फ्लो है, उसे हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ एन इकोनॉमी. और ये इन तीनों का कंटिन्यूस फ्लो कहाँ हो रहा है, हमारी इकोनॉमी में. तो इनका जो कंटिन्यूस फ्लो है तीनों का हमारी इकोनॉमी में, उसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं. ठीक है, इट शोज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन अ सर्कुलर मैनर. मतलब कि इनकम हमारी एक सर्कुलर मैनर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है, बिटवीन द प्रोडक्शन यूनिट्स एंड द हाउस होल्ड. मतलब कि जो इनकम है पहले प्रोडक्शन यूनिट से हाउस होल्ड में जा रही है और वापस हाउस होल्ड से फर्म में जा रही है. ठीक है, तो हम इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ये पढ़ेंगे. और ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है इनकम की इन अ सर्कुलर मैनर फ्रॉम प्रोडक्शन यूनिट, दैट इज फर्म टू हाउस होल्ड, एंड हाउस होल्ड टू फर्म, दैट इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, राइट? सो लेट्स डिस्कस द डायग्राम. ठीक है, फर्म है, ठीक है, ये फर्म है. फर्म अपनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किससे हायर करती है? ठीक है, फर्म अपनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किससे हायर करती है? हाउस होल्ड से हायर करती है. सो बेसिकली हाउस होल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे रहा है फर्म को, राइट? हाउस होल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे रहा है फर्म को, और उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से फर्म को मिल रही है फैक्टर सर्विसेज.
ठीक है। अब ये फैक्टर सर्विसेज किससे मिल रही है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मिल रही है। ठीक है, तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है क्या? 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है क्या? ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, सो हाउस होल्ड ये चारों की फैक्टर सर्विसेज फर्म को दे रहा है। ठीक है, एंड फर्म क्या कर रही है? ठीक है, फर्म इनसे गुड प्रोड्यूस कर रही है। फर्म इनसे गुड्स प्रोड्यूस करके कर रही है और वो हाउस होल्ड को बेच रही है। फर्म इज प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सेलिंग टू द हाउस होल्ड, राइट। देन जब वो गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को दे रही है, ठीक है, तो हाउस होल्ड इज गिविंग मनी टू द फर्म फॉर दिस। ठीक है, ऑब्वियसली व्हेन फर्म इज सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउस होल्ड, तो हाउस होल्ड क्या कर रही है? पैसे दे रही है फर्म को उन गुड्स एंड सर्विसेज को, खर्चा कर रही है, एक्सपेंडिचर कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज पे, और वो जो एक्सपेंडिचर मिल रहा है फर्म को वो वापस हाउस होल्ड को दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट। दैट मीन्स कि जो फैक्टर सर्विसेज मिल रही हैं फर्म को, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो फर्म इनको पेमेंट भी तो करेगा, इनको सैलरी भी तो देगा, लैंड को रेंट देगा, ठीक है, लेबर को वेजेस देगा, कैपिटल को प्रॉफिट देगा, एंटरप्रेन्योर कैपिटल को इंटरेस्ट देगा और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देगा, राइट। सो जब हाउस होल्ड अपना एक्सपेंडिचर कर रही है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज पे, ठीक है, देन फर्म क्या कर रही है? उन पैसों से फर्म फैक्टर पेमेंट दे रही है बैक टू द हाउस होल्ड। ठीक है, तो ये हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हुआ। ठीक है, अब हमने इसमें क्या पॉइंट देखे? हमने इसमें ये पॉइंट देखा कि जो फर्म है, फर्म इज हायरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर फ्रॉम हाउस होल्ड, right? And household is buying goods and services which is made by these factors of services from firm. ठीक है, and when household is buying such goods and services, they are making expenditure, they are giving money to the firm for that, for the services the firm is giving to them, for the goods the firm is giving to them, then firm क्या करता है? उन पैसों को as a factor of payment वापस household को दे देता है। ठीक है, फैक्टर पेमेंट में क्या आएगा? फैक्टर पेमेंट वो होती है जो फैक्टर सर्विसेज को दी जाती है, जैसे लैंड को रेंट दिया जाता है, लेबर को वेजेस दी जाती है, कैपिटल को इंटरेस्ट दिया जाता है, एंटरप्राइजेस को प्रॉफिट दिया जाता है। सो दीज आर द फैक्टर सर्विसेज एंड द क्वेश्चन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज इनकम्प्लीट विदाउट द डायग्राम। सो मेक श्योर whenever this question will come to you in your board examination, you have to draw this diagram. This diagram is really very important for you. I hope this question is clear. और ये क्वेश्चन अभी 6 मार्क में आएगा तो उसको और फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, लेट मी सी वेदर I have given this question in 6 marks also or not. I guess I have given. अगर नहीं होगा तो I'll come back to this question and explain you कि 6 markers में हम ये question कैसे लिखेंगे, right? Now let's come to the 4 markers, right? 4 marker में distinguish between stock and flow which I have already explained to you. ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्टॉक वो वेरिएबल होता है जिसमें हम एक क्वांटिटी को मेजर करते हैं एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और फ्लो वो वेरिएबल होता है जिसमें हम क्वांटिटी को मेजर करते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम में। पॉइंट ऑफ टाइम में मैं लिख सकती हूँ टुडे, या फिर मैं लिख सकती हूँ 2 मार्च 2021। ठीक है, और पीरियड ऑफ टाइम में मैं लिख सकती हूँ 1 ईयर, 1 मंथ, 1 वीक, 10 डेज, ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। ठीक है, डायमेंशन क्या है? स्टॉक है, इट इज नॉट टाइम डायमेंशनल। ये टाइम डायमेंशनल नहीं है क्योंकि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम देख रहे हैं, हम पीरियड नहीं देख रहे। ठीक है, फ्लो क्या है? इट इज टाइम डायमेंशनल बिकॉज वी आर सीइंग इट एज पर आवर, पर मंथ, पर ईयर, पर वीक, 10 डेज। तो ये टाइम डायमेंशनल है, टाइम डायमेंशंस गिवन है। स्टॉक में टाइम डायमेंशंस नहीं गिवन होती क्योंकि हम उसे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या है? स्टॉक है तो ही फ्लो है। ठीक है, अगर स्टॉक नहीं होगा तो मैं मार्केट में क्या बेचूंगी? अगर मेरे पास स्टॉक नहीं है तो मैं नेशनल इनकम कैसे निकालूंगी? मेरे पास स्टॉक नहीं है तो मैं मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स कैसे पहुंचाऊंगी? तो जो स्टॉक है
वो ही फ्लो को इन्फ्लुएंस करता है, और जितना ज़्यादा स्टॉक होता है उतनी ज़्यादा capital flow of goods and services होता है, right? It influences the flow. Greater the stock of capital, greater is the flow of goods and services. Next is flow. Flow influences the stock. Again, flow is incomplete without stock and stock is incomplete without flow. Stock है तो ही flow होगा, और flow तभी होगा जब stock है. So flow influences the stock because, example, monthly increase in the supply of money leads to increase in the quantity of money. मतलब अगर मैं ज़्यादा सप्लाई करती हूँ मनी का तो it will lead to increase in the quantity of money, right? So this is the impact of stock and flow. And then example मैंने आपको ऊपर definitions में भी दिए थे, वो वाले examples भी हो सकते हैं. And one more example is given to you here. Stock क्या होगा? Money in bank account as on 31st March 2014. And यहाँ पे on आएगा, there is typing error. And flow में क्या होगा? Number of births during the month of March 2015. अब यहाँ पे एक specific date की बात कर रही है, और यहाँ पे period of time एक month की बात कर रही है, month that is March, right? I hope I am clear till here. Okay, so next question is give reason and categorize the following into stock and flow. मतलब ये चार चीजें आपने दी हुई है, you have to tell whether these are stock or these are flow with reasons. If you will not write reasons, you will not get any marks. So make sure that you write reasons, right? So let's discuss this. First one is capital. ठीक है, कैपिटल इट इज अ मैन मेड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, कैपिटल में आपकी मशीन हो सकती है, कैपिटल में आपका लैंड हो सकता है. ठीक है, सो इट इज अ मैन मेड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि ये मैन मेड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मैन मेड ने ये प्रोडक्शन करी है. इट इज अ स्टॉक बिकॉज इट इज मेजर्ड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. हमेशा जो कैपिटल है गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करी जाती है, दैट इज वाई इट इज अ स्टॉक. ओके, नेक्स्ट इज सेविंग. सेविंग में क्या है? गिव रीजंस एंड कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू स्टॉक. ओके, यहाँ पे मिस्टेक है, डू नॉट राइट दिस, मैं आपको लिखवा देती हूँ क्या है. सेविंग्स किस में आएगा? टेल मी. ऑब्वियसली यू कैन नॉट. ओके, सो सेविंग इज फ्लो कंसेप्ट. ठीक है, फ्लो क्यों है? क्योंकि हम सेविंग एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में करते हैं. मैंने ये नहीं कि आज 3 बजे या फिर आज इतनी सेविंग कर ली, नो. सेविंग इज डन इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, सो इट इज अ फ्लो कंसेप्ट. ठीक है, फ्लो कंसेप्ट है क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किया जाता है, राइट? नेक्स्ट, GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अगेन अ फ्लो, क्योंकि ये मार्केट वैल्यू देखी जाती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, विच इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम. डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी मार्केट वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, वो एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करी जाती है. दैट इज वाई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज फ्लो, GDP is flow. And next is wealth. वेल्थ में आपका मेन क्या होता आता है? प्रॉपर्टी आती है. ठीक है, प्रॉपर्टी इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि आज मेरी प्रॉपर्टी का रेट इतना है. ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करी जाती है, सो इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट, राइट? सो आई होप आई एम क्लियर टिल हेयर. ओके, नेक्स्ट, एज आई टोल्ड यू कि 6 मार्कर्स, अच्छा अभी 4 मार्कर्स ही चल रहे हैं. जो मैंने आपको ये 3 मार्कर में क्वेश्चन करवाया था, एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, दैट इज अगेन रिपीटेड इन 4 मार्क्स. ठीक है, सो आई होप यू विल बी एबल टू डू दिस. ठीक है, क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. ये चीज सेम लिखी हुई है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? एक अनएंडिंग फ्लो है. किसका? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, इनकम का और एक्सपेंडिचर का, जो इकोनॉमी में होती है. ठीक है, इट इज अ अनएंडिंग फ्लो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो इकोनॉमी में की जाती है. और ये शो करता है कि इनकम कैसे रिडिस्ट्रीब्यूट हो रही है एक सर्कुलर मैनर में बिटवीन द फर्म एंड द हाउस होल्ड. ठीक है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दिस डायग्राम. ठीक है, ये इतना लिखना है सिर्फ 3 मार्क में. ठीक है, अब मैंने कहा 4 मार्क्स में भी यही क्वेश्चन आएगा. अगर 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, देन यू हैव टू एड ऑन द फेजेस. ठीक है, फेजेस क्या है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में? अगर आपने चैप्टर ढंग से पढ़ा है तो यू माइट बी नोइंग देयर आर 3 डिफरेंट फेजेस इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, दैट इज जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन
एंड डिस्पोजल, राइट, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल। ठीक है, अब जनरेशन, सबसे पहले जनरेशन होती है, इनकम जनरेट होती है। इनकम जनरेट कैसे होती है? जब हम गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं, ठीक है, जब फर्म गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को सेल करती है तब उनकी इनकम जनरेट करती है, वो प्रोडक्शन फेज से। प्रोडक्शन फेज से मतलब वी प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड देन वी सेल इट टू द हाउस होल्ड और फिर फर्म को इनकम मिलती है। दैट दिस इज हाउ फर्म जनरेट इनकम। ठीक है, अब जब इनकम जनरेट हो गई फर्म के पास, फर्म को इनकम मिल गई इन द फॉर्म ऑफ रेंट, सॉरी इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, फर्म को कैसे मिली इनकम? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के थ्रू, मतलब कि कंज्यूमर कौन हुआ हमारा? कंज्यूमर हुआ हमारा हाउस होल्ड। तो जो हाउस होल्ड ने खर्चा करा गुड्स और सर्विसेज को खरीदने में, तो जो गुड्स एंड सर्विसेज जिन पैसों से खरीदे वो फर्म के पास गई, तो फर्म ने उस इनकम जनरेट करी। ठीक है, अब इनकम आ गई फर्म के पास, फर्म क्या करेगी? उन इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करेगी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। दैट इज व्हाई इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। और वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, व्हेन इनकम इज जनरेटेड, नेक्स्ट स्टेप इज टू डिस्ट्रीब्यूट दैट इनकम, ठीक है, टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है वेजेस, ठीक है, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। ठीक है, अब जब ये डिस्ट्रीब्यूट कर दी इनकम फर्म ने इन चार चीजों में, तो ये वापस हाउस होल्ड में पैसे चले गए। अब जब वापस हाउस होल्ड में पैसे चले गए तो अगेन दे विल buy goods and services from that money only which have been distributed as an income in the second phase, right? So this diagram is also very important. Now let me explain you what is written here. First is generation phase. ठीक है, generation phase कौन सा हो गया? Generation phase हुआ, in this phase firm produces goods and services with the help of factor services. ठीक है, firm produces goods and services with the help of factor services. ठीक है, तो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं किसकी हेल्प से किए हैं? फैक्टर सर्विसेज के। व्हाट आर द फैक्टर सर्विसेज? सर्विसेज विच आर गिवन बाय लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो सर्विसेज आर कॉल्ड द फैक्टर सर्विसेज। देन सेकेंड फेज इज अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ये फेज क्या है? ये फेज है कि इट इन्वॉल्व्स अ फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। अब क्या हुआ? फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम, जो फर्म ने इनकम जनरेट करी थी फर्स्ट फेज में, वो सेकेंड फेज में उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है तो उसे बोला जाता है फैक्टर इनकम, बिकॉज इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को वो पैसे दिए जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। एंड फर्म ने किसको, और ये वापस फर्म ने हाउस होल्ड को कर दिया। यहाँ से क्या हुआ? हाउस होल्ड, फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे। ठीक है, फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे, प्रोड्यूस करके हाउस होल्ड को बेचे। ठीक है, हाउस होल्ड ने क्या किया? फर्म को पेमेंट करी, वो एक्सपेंडिचर हो गया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और फर्म ने उसी पेमेंट जो उसको आई इनकम को, वो वापस हाउस होल्ड को दे दी इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। राइट, नाउ थर्ड फेज, ये जो थर्ड फेज है, ठीक है, ये जो थर्ड फेज है आपका, ये डिस्पोजल फेज है। ठीक है, थर्ड फेज इज डिस्पोजल फेज। ठीक है, एंड इन दिस फेज जो इनकम रिसीव हुई है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, मतलब इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हेयर, hold on, here income received by factor of production here is spent on the goods and services which are produced by the firm. Dispose, अब उन्होंने इनकम को डिस्पोज कर दिया, डिस्पोजल फेज है ये। ठीक है, ये जो थर्ड फेज है ये आपका डिस्पोजल फेज है, और इसमें हाउस होल्ड ने क्या किया? जो इनकम मिली थी इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, तो वो इनकम जब उन्हें मिली उसके बाद थर्ड फेज में उन्होंने उस इनकम को डिस्पोज कर दिया। कैसे डिस्पोज किया? बाय बाइंग द गुड्स एंड सर्विसेज विच फर्म हैज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो जो इनकम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिली थी इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स, दैट इज डिस्पोज्ड ऑफ। हाउ? that income is spent on the goods and services which is produced by the firm. Here the in disposal phase consumption expenditure करा है household ने on the goods and services which is produced by the firm, right? And then you it is written that last point, income is first generated in production unit.
ठीक है, फर्स्ट फेज हो गया जनरेटेड इन प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है, कैसे जनरेट हुई, जब उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज भेजे हाउस होल्ड को, तो हाउस होल्ड ने पैसे दिए, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट। सो दिस इज हाउ इनकम इज जनरेटेड इन प्रोडक्शन यूनिट। और जब हमारे पास इनकम आ गई तो प्रोडक्शन यूनिट क्या करेगी, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहाँ से आते हैं, हाउस होल्ड से आते हैं। एंड फाइनली स्पेंट और एंड हाउस होल्ड देन फाइनली स्पेंड दैट मनी जो उनको सेकेंड फेज में मिले थे, थर्ड फेज में वो स्पेंड कर देगी ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म, राइट। दिस इज हाउ द सर्कुलर फ्लो कंप्लीटेड इट कोर्स, ठीक है, कि इसी तरह वापस इनकम हाउस होल्ड से फर्म के पास जाती है और वापस फर्म से हाउस होल्ड के पास चली जाती है। दिस इज हाउ इनकम इज सर्कुलेटेड बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म, ठीक है। मोर ओवर अगर आपको याद हो तो इस चैप्टर में हम सिर्फ क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, ठीक है, या सिंपल इकोनॉमी की बात करते हैं। तो क्लोज्ड या सिंपल एक ही बात है, क्लोज्ड इकोनॉमी और सिंपल इकोनॉमी में कौन कौन होता है, ओनली हाउस होल्ड एंड फर्म, ठीक है, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडेड नहीं होता, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द फॉलोइंग, गिव रीजंस एंड कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू स्टॉक एंड फ्लो। जो क्वेश्चंस हमने अभी ऊपर करे थे 3 मार्कर में कि कैपिटल के बारे में हमने करा था, सेविंग के अकाउंट में करा था, बैंक इन बैलेंस इन बैंक अकाउंट, ये भी हम एक एग्जाम्पल कर चुके हैं डिफरेंस बिटवीन में, या फिर डेफिनेशन में हमने ऊपर करा था। हेयर योर न्यू इज प्रॉफिट, ठीक है, स्टिल आई एम डिस्कसिंग ऑल दीज टर्म्स अगेन, ठीक है। जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट या तो पूरे एक साल का देखा जाता है, 6 महीने का देखा जाता है, या मंथली देखा जाता है, ठीक है। सो इट इज मेजर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अ टाइम, इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम, सो इट इज द फ्लो वेरिएबल, राइट। कैपिटल वाला आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, बट आई एम स्टिल एक्सप्लेनिंग टू यू दैट इट इज अ मैन मेड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये स्टॉक है क्योंकि इसे एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है, ठीक है। सेविंग्स का यहाँ पे अगेन गलत लिखा हुआ है, सेविंग इज फ्लो, सेविंग फ्लो क्यों है, क्योंकि उसे पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किया जाता है, राइट। नेक्स्ट इज बैलेंस इन द बैंक अकाउंट। बैलेंस इन द बैंक अकाउंट इज अ स्टॉक वेरिएबल, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे देखते हैं कि हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस है। जो बैलेंस है वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में ही चेक किया जाता है, या एक स्पेसिफाइड डेट पे चेक किया जाता है, दैट इज वाई इट इज अ स्टॉक वेरिएबल, ठीक है। देन कम्स लॉसेस, जैसे लॉसेस पीरियड, जैसे प्रॉफिट पीरियड ऑफ टाइम पे देखे जाते हैं, वैसे ही लॉसेस पीरियड ऑफ टाइम पे देखे जाते हैं, सो इट इज अ फ्लो वेरिएबल, ठीक है। अगेन कैपिटल इज रिपीटेड, कैपिटल में यही लिखना है कि मैन मेड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है, दैट इज वाई इट इज द स्टॉक वेरिएबल। देन कम्स प्रोडक्शन, प्रोडक्शन भी जो है वो फ्लो है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में देखी जाती है कि हमारी एक महीने में कितनी प्रोडक्शन हुई है, ठीक है, या एक हफ्ते में कितनी प्रोडक्शन हुई है, या 6 महीने में कितनी प्रोडक्शन हुई है, या एक साल में। ये पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर नहीं किया जाता, ये प्रोडक्शन ऑफ टाइम पे किया जाता है। एंड हेयर वेल्थ इज अगेन रिपीटेड, ठीक है। सो वेल्थ क्या है, ये एक स्टॉक कंसेप्ट है, क्यों वेल्थ मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी वगैरह होते हैं, और ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किए जाते हैं, दैट इज वाई इट इज stock. Okay, so these are the important questions which I have discussed today with you of the chapter 1 of macroeconomics, and I'll be uploading more videos of all the chapters. Okay, I hope you understand today's lecture, and I'll be uploading more videos every day for you all, and I know these videos will going to help you out for your board exams. and अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है, ठीक है, you can comment on the comment section below, and for further notification of further videos you can press the bell icon so that आपको notification आते रहे. And if you want to take any classes related to any topic, any chapter, and if you want to do the crash course, then further details are given in the detail box below. If you want, I can also provide notes, but for that you have to contact me on the number which is given below in the detail box. So I hope you understand, and किसी भी तरह का डाउट होता है तो I am always here, you can message me anytime, and my number is given in the detail box. So I hope you loved my video. Please like it if you
understand it really well. ठीक है, so thank you, see you in the next video now.